Welcome to English Home. Subscribe our channel to get updates. Enjoy. चलो खेलते हैं। Let's enjoy. Let's play. लेट्स प्ले। क्या आप खेलना चाहते हो मेरे साथ? Do you want to play with me? Do you want to play with me? हाँ, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ। Yes, I want to play Yes, with you. I want to play with you. क्या खेलोगे आप? What do you play? What do you play? What will you play? What will you play? मैं चेस खेलूंगा। What will you play? I will play chess. I will play chess. हम चेस नहीं खेल सकते। We can't play I chess can't play chess We can't play chess क्योंकि मुझे चेस खेलना नहीं आता है। because I don't know how because to play chess. I don't know I don't know how to Yes, play yes. chess. आप चिंता मत करो, Yes. मैं आपको सिखा दूंगा। You don't worry, I will make You you don't worry. learn. I will learn. I will teach you. You will Very learn. simple. I will teach I will learn तो मैं सीख लूंगा ना, ये हो जाएगा। I will Don't worry, I will teach you. कब सिखाओगे? teach you. When will you teach me? When will you When teach will me? you teach me? जब मैं फ्री होऊंगा तब सिखा दूंगा। When I will free, I will teach you. When I will free तो हो ही नहीं सकता। That- विल के बाद तो हमें एक्शन चाहिए होता है ना, फ्री तो एक्शन है नहीं। When I get free और when ऐसे वाले when के साथ तो will वैसे भी नहीं लगाते हैं get free. क्योंकि ये क्वेश्चन तो है नहीं ना। When I get free, I will teach you. Okay? Teach you. क्या आप कल फ्री हो? Okay, sir. Will you tomorrow? Are you free tomorrow? क्या आप What कल will फ्री you हो? do? Are you free tomorrow? हाँ, मैं कल फ्री हूँ। Tomorrow. Yes, I'm free Yes. tomorrow. Yes, I am free tomorrow. Yes, I am free tomorrow. अगर मैं कल आपके पास आऊं तो क्या आप मुझे चेस खेलना सिखाओगे? If I If will I come will to you, come then to you, then you teach you me. will teach me. You will teach Chess. me chess. ओके, इसको ऐसे बोलना है। If I come to you tomorrow, if लगा है इसलिए will नहीं आएगा, ठीक है? If I come to you tomorrow, will you teach me how to play chess? ओके? कल मत आना, कल मत आना। Don't come tomorrow Don't come tomorrow, क्योंकि कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। because Because I am tomorrow going I am going to Delhi. to Delhi tomorrow. Good. I am going to Delhi tomorrow. क्यों जा रहे हो आप दिल्ली? Why are you going Delhi? Why are you going to Delhi? Delhi. मैं एक फंक्शन अटेंड करने जा रहा हूँ। I am going to Delhi. Sorry, To attend the attend. function. Correct. I am going to Delhi to attend a To function. attend the function. Okay, Attend the कैसे function. जाओगे आप? How will you go? How will you go? How मैं will अपनी you कार go? से जाऊंगा। I will go by car. I will go by car. क्या आप अकेले जाओगे? Will you go alone? हाँ, मैं अकेले जाऊंगा। Will you go alone? Yes, I will go alone. Yes, I will go alone. क्या मैं चल सकता हूँ आपके साथ? May I come with you? May I come with you? Correct. Come with you. हाँ बिल्कुल, लेकिन आप इनवाइटेड नहीं हो फंक्शन में। Of course. But Of course, you are but not you- invited. but you are in not function. invited in the function. Yes, of course, but you are not invited for the function. मैं फंक्शन अटेंड नहीं करूंगा। I will not attend the I will function. not attend the function. मैं तो दिल्ली घूमूंगा। I will I visit will visit to Delhi. Delhi. I will visit Delhi. क्या आप दिल्ली गए नहीं हो? Delhi. क्या आप दिल्ली घूमे नहीं हो? Did you not go? Have you not? Didn't go Did you Delhi. not नहीं होगा। Did तो Have तब you लगेगा दिल्ली हो ही ना। Have ठीक है, इफेक्ट है ना दिल्ली का। you no visit? जब इफेक्ट होता है तो have लगता है। Have you not visited Delhi?
Have you not visited Delhi? visited Delhi? Visited Delhi. नहीं, मैंने नहीं घूमा दिल्ली. I have not No, visited I did not Delhi. I have not. visited जब have Delhi. से क्वेश्चन है तो have से ही आपको जवाब देना होगा, ठीक है. I have not visited Delhi. Yes. Have से तो क्वेश्चन था. Have you not I visited? have not I have not visited. visited Delhi. ओके, मैंने बॉम्बे घूमा है. I have visited I Mumbai. have visited Bombay. बॉम्बे कब गए थे आप? When did you go? When Mumbai. have you go? When did you? क्योंकि when जो क्वेश्चन वर्ड है ना वो टाइम के लिए लगता है, और जब टाइम आता है तो फिर have has थर्ड फॉर्म नहीं आते हैं, ठीक है. did आता है, ये हमने सीखा हुआ है क्लास में. When did you go to When मुंबई? did you go to मैं Mumbai? समर वेकेशंस में गया था मुंबई. What's that? मैं मुंबई गया था समर वेकेशंस में. I went to Mumbai in summer vacation. I went to Mumbai on summer vacation. इन समर वेकेशन. आपने मुझे नहीं बताया. In summer vacation. You don't tell me. You did not tell You me. didn't tell me. Don't tell me होता है आप मुझे बताते नहीं हो. Did not You did tell not me. tell me. You did not tell me. Did not tell me. मैं आपके घर आया था आपको बताने. I came to your home to tell you. And came Told I you. came your to home. your home. I came your home to tell you. I home came your home to tell you. to- लेकिन आप घर पे अवेलेबल नहीं थे. But you did not available in your home. Did You were not available not in your home. आप बताओ कहाँ गए थे आप? Tell me, where did you go? You Tell tell me me करेंगे तो where where did you you- went करना पड़ेगा, ठीक है. Tell me where you went. ठीक है. Tell me. Tell me where you went. कहाँ गए थे आप? मैं तो कहीं नहीं गया था. I did not go anywhere. anywhere. I did not go anywhere. कब आए थे आप मेरे घर पे? When did you come? When did you when come did my you home? come When did you come my home? my home? मैं 17 मई को आया था आपके घर पे. I came I Came on came 17th May. to came your home on your home 20 May. I came your home on 17th May. On 17th May को मेरे बेटे का बर्थडे होता है. on 17th May, my son's birthday. My son's 17th birthday my on son 17th Birthday May. is on 17th May. My son's birthday is on 17th May. मैं आपको इनवाइट करने के लिए आया था. I came to invite you. I came I came to to invite you. I came to invite Okay, I came to invite you. आपका घर जो था वो लॉक था. आपका घर लॉक था. Your door But was your house locked. is locked. your Your home was locked. Your home was Your locked. home was locked. Okay. हाँ, उस समय शायद हम हरिद्वार गए थे. उस समय शायद हम हरिद्वार गए थे. Maybe that time I went Maybe to that Haridwar. time that we went Maybe to that time we Haridwar. went to हरिद्वार. to Maybe that time we went to हरिद्वार. आपने मुझे क्यों नहीं बताया हरिद्वार. हरिद्वार के बारे में? Why you didn't tell me about Haridwar? Have Why you didn't you not tell me Why about you हरिद्वार? not Why didn't you tell me about हरिद्वार? You tell me ओके, about अब ये तो हो गया ना जैसे को तैसा. ये हो गया ना जैसे को तैसा. It is tit for tat. It is tit for tat. it for that. it is that It is tit for tat. आपने मुझे हरिद्वार के बारे में नहीं बताया. मैंने आपको मुंबई के बारे में नहीं बताया. You didn't tell me You about didn't tell Haridwar, me and about I Haridwar. you didn't tell Same. me about I Mumbai. didn't tell Tell you you about Mumbai. About You Mumbai. didn't tell me about हरिद्वार. I didn't tell you about मुंबई. Mumbai. ओके. चलो जो हुआ सो हुआ. आगे से हम एक दूसरे से सब चीजें साझा करेंगे. जो हुआ सो हुआ. आगे से हम एक दूसरे से सब चीजें साझा करेंगे. Let it
After Let it go. लेट इट गो नहीं कहेंगे, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, लेट बायगॉन्स हाँ, बी Let बायगॉन्स। bygones be bygones. Let bygones be bygones. फ्रॉम नाउ, अब से, वी विल शेयर एवरीथिंग From विद ईच now, अदर, वी विल शेयर एवरीथिंग विद ईच अदर। we will ओके, हम एक दूसरे से सब कुछ साझा करेंगे, वी विल शेयर एवरीथिंग विद ईच अदर। ठीक है, ओके from each other. फाइन, Okay. Okay, ओके fine. फाइन, ये तो वैसे ही इंग्लिश के वर्ड्स है। ओके फाइन, अब बताओ आज आपका क्या प्लान है? Now tell me Now tell what's me the plan what is today. what is नाउ टेल मी व्हाट्स your योर प्लान plan फॉर टुडे, today? व्हाट्स योर What's प्लान फॉर टुडे? आज मैं बाहर खाना खाने जाऊंगा। I will go today? for I dining will out. go for I dining. will I'll go for dining out. I will go for Dining out. dining out. Dining Today I'll out. go for dining out. dining out. Okay? क्यों आपके घर पे मम्मी ने खाना नहीं बनाया है? Because my mother Why your mother? didn't. Why? पहले आपको बोलना है Your why, mother फिर एक didn't. पॉज देना है, ठीक है? Why? Your mother has not prepared food for you. ठीक है, पहले why बोलना है, एक गैप देना है, why को जोड़िए मत उसके साथ में, ठीक है? Why? क्यों? Your mother has not prepared food Why? at your home for you. आपकी मम्मी ने घर पे आपके लिए Your खाना नहीं mother. बनाया है, ठीक है? Why your mother has not cooked in home? मेरी मम्मी सत्संग अटेंड करने गई थी। My My mother mother went to has attend the My satsang. माय मदर वेंट टू, गई थी लौट के आ चुकी है, इसलिए वेंट लगेगा, ठीक है? अगर वहीं पर ही रुकी रहे तो हैज गॉन लगेगा। has gone. Okay. माय मदर My वेंट mother टू went अटेंड to द सत्संग। attend the satsang. देखिए हैव और डिड में आप बस एक फर्क को अच्छे से समझ के रखा करिए। ऐसा कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है, तो आप हैज हैव और थर्ड फॉर्म लगाइए। इफेक्ट अगर खत्म हो जाए तो आपको डिड और सेकंड फॉर्म से अपनी बात कहनी होती है। टाइम अगर आ जाए, ऐसा टाइम जो बीत चुका है, पास हो चुका है, तब भी आपको सेकंड फॉर्म ही लगानी होती है, डिड लगाना होता है। तो हैज हैव और डिड में ये बहुत बड़ा फर्क होता है। अब मेरी मम्मी सत्संग अटेंड करने गई, ठीक है? पास्ट में उन्होंने ये काम शुरू करा, खत्म किया पास्ट में, ओके? और उनका इफेक्ट अभी भी वहां पर है, वहां पर ही बैठी है, वो सत्संग में ही लौट के नहीं आई है, तो उनका इफेक्ट वहां पर है। तो हम बोलेंगे शी हैज गॉन टू अटेंड द फंक्शन। लेकिन जब मम्मी सत्संग से लौट के आ जाएं, ओके, अब सत्संग का इफेक्ट उनके ऊपर से खत्म हो चुका है, वो लौट के आ चुकी हैं, तो शी वेंट टू सत्संग, शी वेंट टू अटेंड द सत्संग, ठीक है? तो ये डिफरेंस को आप समझ के रखा करिए थोड़ा सा, ओके? मेरी मम्मी बहुत थक गई थी, बहुत थक गई थी मेरी मम्मी। My mother My got mother tired a lot. got very tired. Tired a माय lot. मदर गॉट एक्सट्रीमली टायर्ड, माय मदर गॉट एग्जॉस्टेड भी कह सकते हैं आप, माय मदर गॉट एग्जॉस्टेड, ओके? एग्जॉस्टेड मतलब बहुत बुरी तरह थक जाना होता है, वरना वो खाना बना देती। Otherwise, she would have prepared food. She would have Otherwise, prepared she would have prepared food. Prepared food. Okay. Otherwise, she would have prepared food. Food. आपको मम्मी की जगह खाना बना लेना चाहिए था। मम्मी की जगह आपको खाना बना लेना चाहिए था। You should have prepared food. You should have prepared Behalf food of on your your mother. mother's In the behalf. place of your mother. On your Behalf mother's of behalf your आप कह लीजिए, ठीक है? On your mother's behalf. You should have prepared food on your mother's behalf. मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। I don't know how to. I don't know how to cook food. I don't know how to cook food. आप तो किसी काम के नहीं हो, किसी काम के नहीं हो, आप तो नालायक हो। You are worthless. Good for nothing. Good for nothing. ठीक है? You are good for nothing. आप किसी लायक You are नहीं हो, good for nothing. बेकार हो एकदम। You are good for nothing. ओके? You are good for आपसे अच्छा तो मेरा भाई है। nothing. My mother is better Mother नहीं, than भाई, you. brother. My My brother is नहीं, better brother than is you. My My brother is better than you. My brother is better than you. वो 11 साल का है। He is 11 years He's old. only 11 years He is old. only 11 years old. और वो आटा गूंद लेता है, पराठे सेक लेता है, सब्जी बना लेता है। He most
Sir, may you please repeat the word? वो खाना बना लेता है, आटा गूंद लेता है, ठीक है, He is आटा गूंद 11 लेता years है। old. He cook. He can He cook. has cooked food and He can move knead the dough. dough. He can knead the Knead dough. the He dough. can knead dough. And Knead the dough. dough. He can knead Make the dough. make And paratha. he also Make cooks parathas and vegetable also. Vegetable. And आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। You feel me? food. Feel me sorry, ये क्या सेंटेंस है? You are embarrassing Shy, me। shy. Embarrass कर रहे हो आप हाँ। मुझे। You are embarrassing me। Shy You मतलब शर्माना होता है। embarrassing me. You are embarrassing me। आप मुझे You are embarrass कर रहे हो। embarrassing me. मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ। I'll show you a mirror. I'll show you I'm mirror. showing you the mirror। ऐसे नहीं बोलेंगे, सच में थोड़ा ना आईना दिखा रहा हूँ। I'm telling you what you are। ये बोलना है आपको, I'm ठीक है? telling सच में थोड़ा ना शीशा लेके खड़े हो गए। what you are. आईना दिखाने का मतलब आप किसी को बता रहे हैं कि आप क्या हैं, ठीक है? I'm telling you what you are। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या हैं। I'm telling you what you are। What you are. ओके? Yes, sir. मैं बहुत मेहनती हूँ, मुझे मत बताओ मैं क्या हूँ। मैं बहुत मेहनती हूँ। I'm very hardworking. I am very, I'm Very very hard. What am I? I'm very I know hardworking। what am I? Don't tell me what I am। Don't tell me what I am। ओके? tell me. ज्यादा सेक ही मत मारो, मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। शेक ही मत Don't मारो, मैं आपकी buzz. रग रग से वाकिफ हूँ। Don't buzz. Don't? Don't buzz. I know. बस Don't बस buzz. थोड़ा ना शेक ही मारना होता है। बस बस तो भिनभिनाना हो गया, मक्खियां भिनभिनाती। Don't buzzing me. बोस्ट होता है, डोंट बोस्ट। Boast. Don't post. डोंट बोस्ट। आई Don't नो यू boast. इनसाइड आउट। I know you. I know inside- you. inside out. I know आई you. नो यू इनसाइड आउट। अगर अगर Inside. आप झूठ बोलोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। If you tell If a you lie, tell I don't a talk lie, to I will you. not talk to you. If you tell a lie, I will not talk to you। कितने झूठे हो I आप? will not talk. कितने झूठे हो आप? How liar How are much? you? हाउ मच? How liar are you? किलो के हिसाब से How हाउ मच much? नहीं लगाते यहाँ पर, हाउ लगेगा How? बस, ठीक है? हाउ लायर यू आर। हाउ लायर यू आर। कितने झूठे हो आप? हाउ लायर यू आर। आपका तो काम ही नहीं चलता झूठ बोले बिना। काम ही नहीं चलता आपका झूठ बोले बिना। Your work. योर वर्क, अब वर्क कुछ नहीं आएगा, जो कल सीखा है वो आएगा। यू कांट गो विदाउट टेलिंग अ लाई। आपका तो काम ही नहीं चलता है। जैसे मेरा काम नहीं चलता एसी के बिना, मेरा काम नहीं चलता बाइक के बिना, ठीक है? यू कांट गो विदाउट टेलिंग अ लाई। वही सेंटेंस है, वही एक्सप्रेशन है जो कल सीखा था हमने। जैसे मेरा काम नहीं चलता मार्कर के बिना, मैं पढ़ाता हूँ, मार्कर की आवश्यकता होती है, मेरा काम नहीं चलता इसके बिना। I can't go without. You can't go without a lie. आई कांट गो विदाउट मार्कर। ओके? उसका काम नहीं चलता घड़ी के बिना। घड़ी के बिना बड़ा अजीब सा महसूस करता है वो। He Can can't Can't go work without watch. without He watch. can't go without watch। महिलाओं का काम नहीं चलता शॉपिंग के बिना। ladies can Can't विमेन्स go क्या होता है? without विमेन्स तो watch. कुछ नहीं होता है। shopping. Women. विमेन होता है, एक Women. महिला विमेन है और कई सारी महिलाएं भी विमेन होती है, ठीक है? विमेन कांट गो विदाउट शॉपिंग। Women can't go without shopping. मेरा काम नहीं चलता फैशन के बिना। मैंने देखो टैटू वैटू भी बनवा रखा है। मेरा काम नहीं चलता फैशन के बिना। I can't go I without can go fashion. I without can't go without. आई कैंट गो विदाउट फैशन। क्या आपका काम चलता है फैशन के बिना? If you Do Can you go without कैन Can यू you- गो विदाउट फैशन? can you कैन यू गो विदाउट फैशन? without fashion? without fashion? without हाँ, fashion? मैं तो बहुत सिंपल इंसान हूँ। Yes, I'm very simple. Yes, of Yes, I am. Yes, I am very course simple I am person। a si- I can yes, go I without am fashion। simple I person. am very simple। I can go without fashion। Okay? आपको भी अपना काम चलाना चाहिए फैशन के बिना। You should can go You without should go without fashion. fashion. You should also go without fashion। You You should also go without This is Fashion। also without fashion. अभी आपके पास पैसा है ढेर सारा,
अभी आपके पास पैसा है बहुत ढेर सारा, Now you have lot Now of you have money. a lot of money. I have राइट नाउ यू हैव a lot of लॉट ऑफ मनी। अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ तो क्या करोगे फिर, कैसे करोगे फैशन? If you don't have money, If you then have how can don't you money, do what with will you do? fashion? How will you do your No fashion? money. How will you show your fashion? How will you Okay, how will if you you don't show have your money, how will you fashion? show your fashion? Show your fashion. बात तो सही है आपकी। It's right. You are right. It's Right Yes. you You are are, right. ऐसे भी बोल सकते हैं। You are right या right you are। मैं तो हमेशा ही सही हूँ। I always I'm right. always I right. am also I am right. always right। बस अब बन लो अपने मुंह मियां मिट्टू। मुंह मियां मिट्टू, मुंह माउथ, मियां इज मियां, व्हाट इज मिट्टू? पैरेट। Parrot. Parrot. ऐसे नहीं बोलते, Mouth. इसको बोलते हैं नाउ Parrot. ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, सिंग योर ओन प्रेज। कई सारे Now तरीके you- से बोलने के। सिंग योर ओन प्रेज भी कह सकते हैं, अपनी खुद की तारीफ, ठीक है। Your सिंग योर ओन प्रेज, या आप कह सकते हैं ब्लो Sing योर your ओन ट्रम्पेट, own अपने praise. राग लापो, बस अपने राग लापना, अपनी खुद की तारीफ करना, ठीक है। दो तरीके से आप कह सकते हैं, सिंग योर ओन प्रेज और ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। एक और भी तरीका होता है, सेल्फ प्रेज नीड्स नो रिकमेंडेशन, ऐसे भी कहते हैं। सेल्फ प्रेज नीड्स नो रिकमेंडेशन, थोड़ा बड़ा है, इसको अवॉइड करिए, जो पहले दो बताए वो यूज कर लीजिए, ठीक है। सेल्फ प्रेज नीड्स नो रिकमेंडेशन। खुद की तारीफ के लिए रिकमेंडेशन थोड़ा ना चाहिए होती है, मतलब आप अगर कुछ है तो आपको बोलने की, दिखाने की या किसी से बुलवाने की जरूरत थोड़ा ना, वो तो दिख जाएगा। सचिन तेंदुलकर को बोलने की थोड़ी जरूरत है कि मैं इतना अच्छा खेला या ये वो, सब दिख रहा है, सामने सामने है ना। अमिताभ बच्चन को बोलने की तो जरूरत थोड़ी ना है कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, कितनी अच्छी एक्टिंग करता है, इतनी सुपर हिट दी, ये करा वो करा, क्या जरूरत है बोलने की, दुनिया को पता है। सेल्फ प्रेज नीड्स नो रिकमेंडेशन, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। सो वी हैव डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन आवर प्रीवियस टॉपिक्स। अब हम सीखने वाले हैव का एक और यूज। Okay, sir. मोस्ट प्रोबेबली ये कुछ लास्ट के यूजेस में से Okay. एक यूज आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवांस स्पीकर्स इसी हैव को कुछ छोटे छोटे वर्ड्स की जगह पर यूज कर देते हैं। वो छोटे छोटे वर्ड्स क्या होते हैं, ईट, ड्रिंक, टेक, ये वर्ड्स जो होते हैं इनकी जगह पर हैव यूज कर देते हैं। कभी कभी आपने भी इस हैव को सुना होगा, हो सकता है बोल भी दिया होगा कभी कभी, लेकिन आपको Yes. पूरा ज्ञान नहीं है, और अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। कहते हैं ना, नीम हकीम खतराए जान। Yes, sir. उसकी इंग्लिश होती है अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, राइट। Always तो हमें dangerous. ज्ञान पूरा लेना है, ऐसा नहीं कि हमने कहीं पर एक सेंटेंस सुन लिया उसमें हैव लगा हुआ है, जैसे आई एम हैविंग माय ब्रेकफास्ट, अब इतना तो समझ लिया, सीख लिया, लेकिन इसके अलावा किसी और कॉन्सेप्ट में अगर ये हैव लग जाएगा तो थोड़ा परेशान कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हैव के इतने सारे यूजेस होते हैं। अब ये हैव और उनके साथ जुड़ जाए, कई सारे हैव आपके सामने आ जाएंगे, कंफ्यूजन बढ़ेगी, तो वो कैसे क्लियर हो वो समझते हैं। Yes, sir. सबसे पहले कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के अंदर जिससे पहले आप हैव को एज एन एक्शन यूज कर सकते हैं और स्टाइलिश वे में आप अपनी बात कह सकते हैं। जैसे अगर आप ये कहते हैं, मान लीजिए आपने कहा लेट्स डू प्रैक्टिस या लेट्स प्रैक्टिस, आपने कहा चलो प्रैक्टिस करते हैं, या आप हैव लगा सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन भी है, नो एक्शन भी है। अगर आप प्रैक्टिस को एज एन एक्शन यूज कर रहे हैं तो सीधे बोल दीजिए लेट्स प्रैक्टिस, लेकिन उसको एक नो एक्शन की तरह यूज कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, तो आप उसके आगे हैव लगा दीजिए। क्यों लगा दीजिए हैव? ऐसे भी काम चल सकता है लेट्स डू प्रैक्टिस, लेकिन हैव लगाने से थोड़ा स्टाइलिश हो जाता है, बस इतना ही फर्क है। लेट्स हैव प्रैक्टिस, लेट्स हैव मीटिंग, चलो मीटिंग करते हैं। लेट्स डू डिस्कशन, Let's आप ये have बोल meeting. सकते हैं बड़े आराम से, लेट्स डू डिस्कशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो चर्चा करते हैं। लेट्स डिस्कस कह सकते हैं आप, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप हैव लगाएंगे तो थोड़ा स्टाइलिश लगेगा, लेट्स हैव डिस्कशन, ठीक है। चलो पार्टी करते हैं, लेट्स हैव पार्टी। तो मैं ऐसे कुछ वर्ड्स आपको बता देता हूँ जिनसे पहले हैव लग जाता है, बाकी आप धीरे धीरे जब इंग्लिश बोलेंगे, लोगों से बात करेंगे, सुनेंगे, अपने आप आपको अंदाजा लग जाएगा ये हैव और किन सब शब्दों के साथ यूज हो जाता है। तो कुछ वर्ड्स हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं, जैसे है हैव लेट्स हैव शॉपिंग, चलो खरीदारी करते हैं, तो शॉपिंग एक वर्ड हो गया, इससे पहले आप इस हैव को लगा लीजिए, ठीक है। लेट्स हैव Yes, sir. डिस्कशन, चलो चर्चा करते हैं। लेट्स हैव डिबेट, चलो वाद विवाद करते हैं। लेट्स हैव फन, चलो मजे करते हैं, लुत्फ उठाते हैं, मजे करते हैं, एंजॉय करते हैं। लेट्स हैव पार्टी, चलो पार्टी करते हैं। लेट्स हैव
मीटिंग, चलो मीटिंग करते हैं। अब मैं अगर लिखना बंद ना करूं तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनसे पहले इस हैव को लगा सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर रोक देते हैं। आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि कैसे शब्दों से पहले इस हैव को लगाएंगे। अब ये ऐसे शब्द हैं जो नो एक्शन है, जिनमें कोई काम नहीं है। शॉपिंग खरीदारी हो गई, डिस्कशन चर्चा हो गई, डिबेट वाद विवाद हो गया, फन मजे हो गए, पार्टी पार्टी है, मीटिंग सभा हो गई। ये सारे नो एक्शन है। तो जब नो एक्शन आ जाए आपके सामने और आपको उसे एक्शन बना के बोलना है, जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से, तो आप हैव लगा लीजिए और अपनी बात पूरी कर दीजिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं है नो एक्शन। अब जैसे प्लेयर भी नो एक्शन होता है, प्लेयर मतलब खिलाड़ी, तो आप ऐसे नहीं कर दीजिएगा लेट्स हैव प्लेयर, क्योंकि इसका कोई सेंस थोड़ा ना बन रहा है। चलो प्लेयर करते हैं, तो ये तो अजीब सा हो गया। वर्ड भी तो ऐसा होना चाहिए जो एप्रोप्रिएट हो वहां पर। ठीक है, तभी तो सही रहेगा। तो ये भी आपको देखना है, वर्ड एप्रोप्रिएट होना चाहिए, है ना। हैव यहाँ पर एक तरीके से करने के रूप में यहाँ पर आ रहा है, कोई चीज करने के लिए। ठीक है, जैसे अब मैंने कहा चलो पंजा लड़ाते हैं। अब पंजा लड़ाने के लिए पंजा लड़ाना आर्म रेसल होता है, ARMWRESTL, आर्म रेसल। लड़ाने के लिए क्या लगाएं, तो हैव लगा लीजिए, लेट्स हैव आर्म रेसल, काम हो गया पूरा। चलो रेस लगाते हैं, लेट्स हैव रेस, काम हो गया। कहने को तो आप लेट्स रेस भी कह सकते हैं, लेट्स रेस, रेस क्योंकि एक्शन भी होता है, रेसिंग, रेस्ड, वो एक्शन भी होता है। लेकिन स्टाइलिश बनाना है तो लेट्स हैव रेस कर लीजिए, मजा आएगा बोलने में, लेट्स हैव रेस। चलो शर्त लगाते हैं, लेट्स बैट बोल सकते हैं आप, लेकिन लेट्स हैव बैट कर लीजिए, लेट्स हैव बैट। चलो शर्त लगाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा अपनी लैंग्वेज को स्टाइलिश बनाने के लिए इस हैव को यूज कर सकते हैं, और आपको लग रहा होगा खुद अपने आप में बोलने में कि इस हैव को लगाने के बाद आप थोड़ा स्टाइलिश हो रहे हैं, अंदर से मतलब स्टाइल सा आ रहा होगा। लेट्स हैव अ लुक। चलिए देखते हैं। अब वो देखने के लिए तो ऐसे भी कह सकते थे लेट्स सी, लेकिन लेट्स सी बोलने की जगह इतना बड़ा क्यों बोल रहे हैं, लेट्स हैव अ लुक। लेट्स हैव अ लुक मतलब चलो एक नजर मारते हैं, देखते हैं क्या क्या है, हाइलाइट्स पे नजर मारते हैं, लेट्स हैव अ लुक। ठीक है, तो एक तो ऐसे इस रूप में आपको हैव दिखाई दे रहा है कुछ कुछ शब्दों से पहले। दूसरा, 3 वर्ड्स जो आपने पहले से सीखे हुए हैं, आपको याद होगा इनिशियल क्लासेस में खाने और पीने के लिए आप वर्ड्स यूज करते थे, ईट एंड ड्रिंक। खाने के लिए ईट, पीने के लिए ड्रिंक। ठीक है, लिक्विड है उसे आप गट 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 Yes. खा रहे हैं तो ड्रिंक है, कोई सॉलिड है उसे चबा चबा के खा रहे हैं तो ईट हो जाता है। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा ईट और ड्रिंक में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, क्योंकि आइसक्रीम के लिए ना ईट होता है ना ड्रिंक होता है। मैंने कहा टेक लगा लीजिए, ये करिए, सब परेशान मत होइए। टेक लगाना शुरू कर दिया हमने। ठीक है, टेक लगाते रहे काफी टाइम तक, फिर आज हमें ऐसी आदत पड़ गई कि हम खाने पीने की हर एक चीज के साथ टेक लगा के बोल रहे हैं सेंटेंसेस, जैसे आई एम टेकिंग टी, आई विल टेक समोसा, लाइक दैट, वुड यू लाइक टू टेक टी। तो टेक में थोड़ा मजा नहीं आता। अब टेक की जगह अगर आप हैव लगा दें, और सिर्फ टेक की जगह नहीं, ईट, ड्रिंक और टेक, इन तीनों शब्दों की जगह अगर आप हैव को लगा दें, तो हैव बड़ा स्टाइल यहां पर क्रिएट कर देगा। जैसे लेट्स हैव कोक, चलो कोक पीते हैं। next step. हैव अ ब्रेक, हैव अ किटकैट, ये आपने ऐड देखा होगा जरूर। किटकैट का ऐड आता है, लाल कलर की पन्नी में चॉकलेट आती है किटकैट नेस्ले की, उसमें नीचे लिखा आता है अच्छा, हैव अ ब्रेक, हैव अ किटकैट, एक ब्रेक लीजिए। वहां टेक की जगह टेक अ ब्रेक, तो वहां पर हैव आ रहा है। और क्या खाइए, किटकैट खाइए। कभी देखिएगा नीचे लिखा आता है हैव अ ब्रेक, हैव अ किटकैट। ठीक है, तो ऐसे खाने पीने की चीजों से पहले आप हैव को लगाइए। लेकिन अब सिर्फ हैव तो लगाना नहीं है। अब प्रेजेंट में कोई चीज खाते हैं तो हैव लगाएंगे, पास्ट में कोई चीज खाई थी तो हैव की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, और हैव की सेकंड फॉर्म हो जाती है हैड। जैसे अगर आपको ये बोलना है कि मैंने समोसा खाया था, तो आपको ये कहना पड़ेगा आई हैड समोसा। काम चल रहा है तो हैव में आईएनजी लगाना पड़ेगा। थर्ड पर्सन की बात होगी तो एस और यस लगाना पड़ेगा, जो कि बन जाएगा हैज। हैव में एस लगता है तो हैव्स बन जाता है, हैव्स को शॉर्ट में हैज बोलते हैं। तो अगर आपको ये कहना है कि तो नॉनवेज खाती है, शी हैज नॉनवेज। अब शी हैज नॉनवेज का मतलब ये भी तो हो सकता है उसके पास नॉनवेज है। तो भारी भरकम कंफ्यूजन हो जाती है, yes. इसलिए अगर हम पूरा ज्ञान ले लेंगे ना इसके बारे में तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो विल टेक एंटायर नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक, बट आप पहले रिकनेक्ट कर लीजिए, टाइम पूरा हो चुका है, फिर हम इसको समझते हैं। ठीक है, Okay, sir.